اور آپ لوگوں نے آئی ایم شیور دیکھا ہوگا F8 اسلام آباد مسجد رحمت للعالمین بہت وائرل بھی رہی ہے، اپنے بہت زبردست انہوں نے کام کیا ہے شروع، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پاکستان کی جتنی بھی مساجد ہیں ان کو کرنا چاہیے ماشاءاللہ سے۔ مسجد رحمت للعالمین جیسے آپ اپنی اسکرین کے اوپر ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے میرج ہال بھی وہاں پہ جو ہے قائم کیا ہے، اور اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب جو مسجد رحمت للعالمین سے ہیں۔ آپ کا تعلق ہے سر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل بھٹی، اور ماشاءاللہ سے آپ کے بیٹے کا ولیمہ، بیٹی کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے مسجد رحمت للعالمین میں۔ تو سب سے پہلے میں سر آپ سے سٹارٹ کروں گا، اور ہمارے ساتھ طلحہ ہاشمی بھی موجود ہے۔ ننا ہمارا بہت ہی خوبصورت مہمان ہے جو مطلب دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو جو ہے بہت ٹیلنٹ دیا ہے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ نعت پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت آواز عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بہت بہت خوبصورت۔ فیصل صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس، اور یہ جو ایک سروس کا آغاز کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کتنا یہ ایک زبردست ایک اقدام ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب نے یہ جو انیشیٹ کیا ہے، یہ میں چونکہ دنیا کے 19 ملک گھوم چکا ہوں، تو میں وہاں پہ مختلف سیرمنیز جو ہیں وہ اٹینڈ کرتا رہا ہوں، شادی سے لے کے فنرل تک۔ تو میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہمارے ملک کے خدا داد میں بھی کوئی ایسا نظام وضع ہو جائے یا کوئی ایسا انیشیٹو ہو جائے کہ اگر چرچ میں شادیاں ہو سکتی ہیں، اگر سینیگاگز میں شادیاں ہو سکتی ہیں، اگر ٹیمپلز میں شادیاں ہو سکتی ہیں، تو ہماری مساجد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل۔ تو جیسے ہی مجھے وہ وائرل ہوئی ان کی پوسٹ، اور وہ گروپ میں جیسے ہی وہ آیا، اور میں نے اسی دن یعنی جسٹ اٹس پاپڈ اپ ٹو می، اینڈ میں نے اسی وقت کال کی اور میں نے کہا سر میں آ رہا ہوں، کیونکہ میری بیٹی کی شادی تھی 13 تاریخ کو، یہ 13 مئی کو۔ صحیح۔ تو میں نے ہال کی بکنگ کینسل کی اسی وقت، اور میں نے آ کے یہاں پہ اپنی رجسٹریشن کرائی، اور آئی ایم سو تھینک فل بائی دی گریس آف اللہ، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جو انیشیٹ کیا ہے یہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ہماری تمام مساجد کو اس طرح کمیونٹی سینٹر کے طور پہ آنا چاہیے۔ کانسیپٹ یہی تھا نا مساجد کا؟ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، ایگزیکٹلی کمیونٹی سینٹرز کا ہی کانسیپٹ طور پہ مسلمانوں کی اخوت، محبت اور آپس میں چاہت کا مرکز، اس کے اظہار کا مرکز مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کی طرف پلٹیں تو مسجد مرکز صدا اور مرکز دعا تو تھی، لیکن ساتھ ساتھ مرکز شفا بھی تھی، مسائل کا حل کا مرکز بھی تھی۔ وہیں پہ خواتین آتی تھیں، اپنا حق لیتی تھیں، وہیں سے سارے کے سارے معاملات مملکت کے طے پاتے تھے۔ وہی مسجد وزارت اطلاعات بھی تھی، وہیں پہ خبریں جمع ہوتی تھیں، وہیں سے پھر خبریں بھیجی بھی جاتی تھیں۔ وہ ایک سفارت خانہ بھی تھی، اور اسی طریقے سے مسجد کا کوئی بھی مسلمانوں کا معاملہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہ مرکز تھی، اور ہمیں اپنی مساجد کو، چند بڑی مساجد کو اسی طرح کا مرکز بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ معاشرے میں جتنا ستم، جتنا ظلم اور جتنی پسماندگی بڑھ رہی ہے، اس میں ہر چیز کا حل، بیٹیوں کے مسئلے ہوں، بیویوں کے ہوں، شوہروں کے ہوں، امن و امان کا مسئلہ ہو، پڑوسی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بڑھتی ہوئی بیماریوں وباؤں کا مسئلہ ہو، مسجد سے بہتر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جہاں پہ لوگ حاضر ہوتے ہوں، روزانہ حاضری دیتے ہوں، اور اکٹھی اتنی بڑی تعداد میں جیسے ہم جمعے میں حاضر ہوتے ہوں، اور وہاں سے ان کی تربیت کا انتظام کیا جا سکے۔ اس سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مسجد میں اب تک کتنے جوڑوں کی شادیاں ہو چکی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلا ہفتہ جو ہمارا ایک ابھی مکمل ہوا ہے، اس میں 4 شادیاں ہو چکی ہیں۔ اس میں 2 خوشحال گھرانے ہیں، اور 2 متوسط طبقے کے یا سفید پوش گھرانے ہیں، اور اس میں بیٹیوں کی رخصتیاں بھی ہوئی ہیں اور بیٹوں کے ولیمے بھی ہوئے ہیں۔ اگلے ہفتے بھی اسی طرح ہماری 5-6 مزید بکنگز ہیں، اور جیسے جیسے لوگوں کو بات پتہ لگ رہی ہے، یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیصل صاحب یہ بتائیں مسجد کے انتظامات کیسے تھے؟ سپرب۔ فیملی میں ایک تھا کہ مسجد میں اب انہوں نے شفٹ کر دیا ہے،
मुश्किल फैसला होगा, फैमिली से बहुत प्रेशर भी होगा शायद। नहीं, प्रेशर ऐसा नहीं था, लेकिन वो क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट सन इन माय फैमिली, तो वो मुझे तो वो प्रेशर टैकल करने की आदत है। तो वो ऐसा इशू नहीं था, लेकिन सिर्फ ये था कि बेटी को थोड़ा सा था कि आपने ये उधर निकाह मस्जिद में, क्योंकि पहले भी मैंने यही सोचा हुआ था कि निकाह हम मस्जिद में करेंगे, फंक्शन हम जो है वो हॉल में करेंगे। तो जब ये हॉल और मस्जिद एक साथ मिल गई हमें, तो मैंने कहा इससे अच्छी तो बात कोई नहीं हो सकती। तो पहले वो बेटी को ज़रा हुआ कि खाना कैसे खिलाएंगे, मिसेस ने भी कहा कि वो इंतज़ामात कैसे होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। तो वो हुआ, फिर बेहतरीन हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के जो मेम्बरान जिन्होंने शिरकत की इस शादी में, उनकी फीडबैक ये थी कि ये हमारी ज़िंदगी का बेस्ट निकाह था जिसमें हमने इस निकाह की सेरेमनी में, इस शादी में हमने शिरकत की है। कि बच्चे जो शामिल हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा कि शादियों ब्याहों में जो बच्चे होते हैं उन्होंने एक उधम मचाया होता है, भाग दौड़ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, चीख चिल्ला रहे होते हैं, येलिंग हो रही होती है। लेकिन इस दफ़ा वो सारे हैरान थे कि छोटे मासूम बच्चे, कोई रो नहीं रहा, कोई ऐसा मामला नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, और सुकून। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा दीनी फ़र्ज़ है। निकाह जो है, अल्लाह के नबी के हदीस का मफ़हूम है कि निकाह मेरी सुन्नत है और मेरी सुन्नत से रग़बत इख्तियार करो। तो अब निकाह हमारा चूँकि दीनी फ़र्ज़ है, हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम उसमें तमाम तर शैतानी काम करें, ढोल ढमक्के, म्यूज़िक, ये वो, और उसके बाद कुरान के साए में बेटी को रुखसत करें कि अल्लाह बरकत देगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये दो कंट्रडिक्शन एक्सट्रीम पे हम खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें हमें ये हो गया कि हम तमाम खुराफात से बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और हमारा काम जो है वो बहुत अच्छे असलूब के साथ तय पा गया और बड़े ज़बरदस्त इंतजामात के साथ। बहुत ज़बरदस्त है डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से ये एक रेवोल्यूशन भी हो सकता है, एक स्टार्ट हो सकता है। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में मसाजिद हैं, और अगर वो सारी कन्वर्ट हो जाएं तो मेरे ख्याल से हमें पनाह गाँव की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और भी बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। ये इतना बड़ा समाजी इनकलाब होगा कि अगर पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों की सिर्फ बड़ी मसाजिद में से 1% या 2% मसाजिद ऐसा कर लें, तो आप सर्वे कर लीजिए, हर शहर में हज़ारों बेटियां सफ़ेद पोश लोगों की, मुतवस्सित तबके की बैठी हैं, इसलिए कि वालिदैन के पास वसाइल नहीं है, जोड़ रहे हैं और उनकी उम्र गुजर जाती है। और अगर हम उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए जो सफ़ेद पोश हैं लेकिन इसराफ नहीं कर सकते, लेकिन कर्जे लेके डूबते हैं, तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का उनके लिए जो हमें सदका खैरात जमा करना होता है उसकी ज़रूरत ही ना रहे। ये बराह रास्त रिलीफ है 2 लाख रुपए का कम अज कम किसी भी खानदान के लिए। एक बेटे या बेटी को रुखसत या उसके वलीमे के लिए जहाँ पे आपको एक माकूल जगह बैठने के लिए चाहिए, इस्लामाबाद जैसे शहर में वो कम अज कम 2-2.5 लाख तो सिर्फ की बुकिंग के हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हज़ारों ऐसी माएँ जो बेवा हैं, जो दर बदर जाती हैं, मांगती हैं अपनी बेटियों को रिश्तों के लिए। बाप सफ़ेद पोश है, मेहनत कश है, वो जाता है, मांगता है, उसको वो धक्के नहीं उठाने पड़ेंगे, वो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो पेशावर भकारी नहीं है लेकिन मजबूर है। तीसरी चीज़ कि शादी अल्लाह ताला की एक नेमत है और एक ख़ानदान का आगाज़ है। उस ख़ानदान के आगाज़ को, उस मुबारक रिश्ते को हम चाहते ना चाहते हुए शौरी लाशौरी तौर पे इतने बड़े गुनाहों के साथ शुरू करते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की हदों को, उसकी तालीमात को पामाल कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मसाजिद शुरू कर देंगी तो वो खुराफात जो हमारे मुआशरे में सिर्फ हम इसलिए करने में मजबूर हैं कि दूसरे करते हैं और एक शादी हाल और मार्केट कल्चर है, उससे लोग बच जाएंगे। आखिरत का ये सौदा है। मेरे लिए सबसे बड़ी सरमायाकारी ये है कि आखिरत की आग से उन लोगों को, हम अपने लोगों को बचा लें। कौन होगा जो मस्जिद में जब निकाह के लिए आएगा और रुखसी के लिए आएगा तो फिर वहाँ पे वो सारे काम करेगा जो इस्लाम में मना है? वो खुद ब खुद रुक जाएगा, एहतराम करेगा और उसको दिली सुकून मिलेगा। जैसा इन्होंने कहा कि फैसल साहब ने कहा कि हम निकाह तो मस्जिद में कर लेते हैं लेकिन बाद में फंक्शन जाके मार्की और होटल में करते हैं, और वो सब कुछ करते हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। जब मसाजिद सिर्फ निकाह नहीं, जो शानदार सहूलतें हमें किसी होटल या मार्की में लोगों को देनी है वो मसाजिद मुहैया कर दें, तो सबसे बड़ी चीज़ है नस्लों का, ख़ानदानों का मस्जिद के साथ ताल्लुक बनेगा, वो खुराफात ख़त्म हो जाएंगी, और जो इत्मीनान और बरकत है उसका तो अल्फाज में हम इहाता नहीं कर सकते, वो इतनी ज़्यादा होती है दिली तौर पर।
सर ये बताएं कि उस मस्जिद में कितनी कैपेसिटी है लोगों के लिए, कितने लोगों का आप बारात या वलीमे का इंतज़ाम कर सकते हैं? अभी तक जो हमारे पास हमने सेटअप बना चुके हैं उसमें 250 अफराद के वहाँ पे बैठने की गुंजाइश है, और इसीलिए है कि मुख्तलिफ ख़ानदान है, सबके अपने अपने समाजी ताल्लुकात होते हैं, कम ज़्यादा तादाद। हम उन्हें ये ज़रूर कहते हैं कि खाम खा बिला ज़रूरत मेहमान न बुलाएं, लेकिन अगर किसी का ख़ानदान बड़ा है, उसका दायरा जो है सर्कल बड़ा है, तो हम उसको उसके लिए उसको हमने सहूलत मुहैया की, और इंशाल्लाह अगले 2-3 माह में इसको हम 400 तक 500 तक इसलिए ले जाएंगे कि हमें लग रहा है कि हमें एक एक वक्त में 3-3 फंक्शन भी लोगों को उनको सहूलत देनी होगी। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहमतुल आलमीन की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। ये काफिला रहमत है, अल्लाह ताला की तौफीक से काम हो रहा है। जो लोगों की जायज़ सहूलत है वो मस्जिदें दे दें और नाजायज़ पाबंदियां ना लगाएं। एक तरफ अगर हमारा दुनियादार तबका इसराफ और फजूल खर्ची की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे मैं ये भी सलाह करता चलूँ कि कुछ मजहबी तबका ये बयानिया बनाता है कि बेटी की रुस्ती पे खाना क्यों दें, 2-4 लोग बुलाएं और उनको उसको भेज दें, हम बेटी की तरफ ऐसा क्यों करें। आखिर बेटी के जो मेहमान हैं, उसकी सहेलियां हैं, उसके जानने वाला सर्कल है, उनको हम कहें कि बेटी की शादी होगी, आपने शादी पे नहीं आना, या मेरे घर आए तो हम उनको खाना ना खिलाएं, वो मजहबी बयानिया भी गलत है। वो भी लोगों को जब हम गलत किस्म की पाबंदियां लगाएंगे होगी तो फिर वो लोग खुद बखुद बागी होंगे। लोगों को अपनी फितरत के मुताबिक खुशियां मनाने दें। शादी में और जनाजे में फ़र्क होना चाहिए, बेशक। शादी पे एहतमाम होना चाहिए, शादी पे बेटियों को संवरना सजना चाहिए, शरीयत के हुदूद में पर्दे में रह के वो सब करना चाहिए जो उनके लिए अल्लाह ताला ने हलाल किया है। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।